Let us awake. Awake means have full consciousness. To listen. Listen means pure listening. When you are listening, do not try to understand, do not try to remember. That is the important point. Let us again cover this topic, which is very important. What is called the Gurudom means that is the kingdom of Guru. What is the kingdom of Guru? The place where you realize presence of God. Guru is always directs attention of a human being towards ultimate truth. Who is ultimate truth? God. Who is God? God is one. Nature of God is creator, preservator, and changer, means developer. That is God, is only one, not two. What is great quality of God? Everything is open, nothing is hidden. There is no privacy. In order to show nature of God, that I am creator of evil and virtues. All evil and virtues, good and bad, all are coming out of me. So he is not hiding that he has not created this universe where there are so many fights, so many problems are there. God accepts, yes, I have done it. But also he said, try to practice oneness with me, you will realize there is no fight, there is no birth, there is no death. Because you are not feeling oneness with me, you have no devotion in me, you do not have perfect love with me, therefore you are having illusion. What is aim of life? To practice oneness with God. Jesus Christ practiced that supreme technique given by Mahatar Babaji, and he realized I and God are one. This is the Vedas Sutra, Aham Brahmasmi. Parabrahm is God. Aham means self. This little self is one with the Parabrahm. Same thing was taught by Jesus Christ, I and God are one. Then how to find it? What is the teaching? When I got it, yes, this is God. No. Seek more and more. Only I have to seek more and more. Moment I say, I got it, and I should say, I got, but this perception of God is only little. I have to experience more and more. Therefore, this is called seek a kingdom of God. Seek. Moment you are in kingdom of God, you cannot explain it. The kingdom of God is fully charged with the presence of God, and you cannot explain God. Wisdom mind has no power to explain it. Therefore, God is, everything is open, nothing is hidden. He has created this Maya. But if creation of Maya is so powerful, working like God, therefore we human beings, working like creator, we created these houses and building and so many things we discovered. Seek kingdom of God. When I start seeking kingdom of God, I got electricity, I got Wi-Fi, I got so many things. All right. But that is not the end. More and more, more and more. At the end you will realize you can create electricity. You can create the whole universe. Moment you feel you are creator, that is called oneness with God. अच्छी तरह से याद रखिए, इस चीज को फिर से समझें। जीवन का लक्ष्य क्या है? गुरु धाम में रहना। गुरु धाम क्या है? गुरु की वो जगह है जहां हम जाते हैं तो परब्रह्म के साथ एकता की अनुभूति होती है। जैसे जीसस क्राइस्ट गुरु धाम में गए महाअवतार बाबा के साथ, 12 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष तक महाअवतार बाबा के साथ रहे और पूरी तरह से उनको एक्सपीरियंस हो गया, उनके और परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। जब अनुभव कर लिए तो उन्होंने कहा कि आई एंड गॉड आर वन। तो ये सभी अनुभव करें, इसके लिए पश्चिम में गए सिखाने के लिए।
तो आई एंड गॉड आर वन, यही अनुभव करना है। उसको हम अपने देश में, भारत में क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जो परब्रह्म है और हमारे उनके बीच में दूरी नहीं है। अभी दूरी लगती है तो क्या करें कि दूरी खत्म हो। तो इसके लिए क्रिया योग ध्यान है। क्रिया ध्यान करते जाइए, दूरी खत्म होती जाएगी। यही इंपॉर्टेंट। तो चलो गुरुडम है, जहां जाकर के हम क्रिया योग ध्यान सीखते हैं, सच में सीखते हैं, एक लक्ष्य के लिए कि आई एंड गॉड आर वन अनुभव करें। हमारे ब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। जैसे अनुभव होता है उसमें यह भी अनुभव होगा कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप तो वीवीआईपी हैं, आपके परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। अरे ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं, इनकी महिमा अनंत और असीम है। चाहे धूल का कण हो, चाहे पेड़ की सूखी पत्ती हो, कुछ भी हो, प्रत्येक रचना और परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। तब क्या करते हैं, सभी के प्रति अनंत सम्मान करते हैं। ब्रह्मांड की संपूर्ण रचनाओं के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, अनंत। तो चलो क्रिया का अभ्यास किए, अब ईश्वर की अनुभूति कर लिए, नहीं, मोर एंड मोर, और है और है और है, इतना ही नहीं है, और है और है, अनुभव करते जाइए जब तक ये ना आ जाए कि आप माया का सृजन कर लेते हैं। आपने पृथ्वी बना लिया, वनस्पति जगत, जंतु जगत, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर लिया। तो आपने सब निर्माण कर लिया। जब सब निर्माण कर लिया तब हम उस चीज को पा गए जिसको कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, इसके पहले नहीं। तो चलो निर्माण करने की क्रिया में हमने क्या कहा, हमने खोजा। क्या खोजा, कहा गया परब्रह्म को खोजिए। खोजते समय अगर पा गए, आपने कहा कि हम पा गए, तो गलत है, अभी नहीं पाए। खोजते जाइए, खोजते जाइए। खोजते खोजते परब्रह्म को क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिला, वाईफाई। क्या मिला, एरोप्लेन। क्या मिला, रॉकेट। न जाने क्या क्या मिला। परब्रह्म को खोजते गए, चीजें मिलती गई। लेकिन यहीं पर रुकिए मत, और खोजते जाइए। खोजते खोजते एक दिन आएगा, आप तो पृथ्वी बना लेते हैं, वनस्पति जगत, जंतु जगत, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कर लेते हैं। तब अनुभव होगा हम ब्रह्मास्मि, हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं। तब देखिए, जो क्रिश्चियनिटी है और सनातन धर्म, दोनों में एक ही शिक्षा है। सेम एजुकेशन, सेम टीचिंग is called the Indian heritage. Same teaching is called Christianity. If any Christian say what is written in the Bible, this is not the Indian heritage. If any Indian says what is written in Indian heritage, it is not teaching of Jesus Christ, they have to understand more. I don't say they are telling incorrect. Okay, they are correct in their own way. But try to seek more and more, you will realize this truth, what is given in the Holy Science. In just opening of the chapter, Gyanatar Gurudev Samyukta Sagari writes very clearly that there is an essential unity in all religion. जितने भी धर्म है सब में एक ही सच है। हम लोग क्या कहते हैं, परब्रह्म है, उनकी लीला है ये। क्रिश्चियन क्या कहते हैं, गॉड एक है। लक्ष्य क्या है, हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी जो दिखाई पड़ती है, दूरी खत्म करनी है। यही शिक्षा है। यही मुस्लिम भी कहते हैं, खुदा एक है, सब वही कहते हैं। और लेकिन खुदा एक है, ठीक है। तो जो भी हम खुदा के पाने का प्रयत्न करते हैं इस्लाम में, या जो अपने यहाँ हम तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, नदी पूजते हैं, पहाड़ पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, सुअर पिग को पूजते हैं, सब देवी देवता को, राक्षस को भी पूजते हैं, सब ठीक है। लेकिन उससे मिलने वाले नहीं है। और पूजिए और पूजिए, इतना पूजते जाइए। पूजना का मतलब क्या होता है, पाना। पा का मतलब पाना। ऐसा ज्ञान पाइए। नदी पूजने का अर्थ क्या है कि नदी को बनाने का ज्ञान पा लीजिए। देखिए पूजना किसको कहते हैं,
पा है पाना। हम किस चीज को पाए? अपने लाइफ फोर्स को ऊपर ले जाइए। हमने अभ्यास के अंदर गई, फिर ऊपर गई, तो ऊपर चलते जाइए, पाते जाइए। क्या पाएंगे? ज्ञान। जय है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सीजन, सुरक्षा, परिवर्तन। नदी की पूजा करिए, बहुत अच्छा है। तब तक पूजा करिए जब तक नदी बना न ले। अरे नदी कैसे बना सकते हैं? स्वप्न में बनाते हैं कि नहीं? आप स्वप्न दिखते हैं कि आप नदी के किनारे टहल रहे हैं, तो नदी दिखती है कि नहीं? कैसे स्वप्न बनाते हैं? अपने थाट को कंडेंस करके वो नदी बन गई स्वप्न में। जैसे स्वप्न में हम बना लेते हैं हर चीजों को, अपनी शक्ति को परिवर्तित, रूपांतरित कर देते हैं। ऐसे जागृत अवस्था में अपनी शक्ति को रूपांतरित करके आप नदी बना दिए, पहाड़ बना दिए, पेड़ बना दिए, पूरा ब्रह्मांड बना दिए। यहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो इसके लिए करना क्या है? और अभ्यास करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। नानक देव जी ने यही कहा। हमें गुरु नानक देव जी की किताब एक मिली, जपजी साहब। जपजी साहब जानते हैं? इतनी सी ये पुस्तक जपजी साहब, समझिए कि ये अध्यात्म का ये समुद्र है, सागर है ये। हम आपको 2 लाइन इसमें बताते हैं, कितना बढ़िया लिखा है। जो होली साइंस में लिखा है, परब्रह्म एक है, उनका आदि अंत नहीं है। ये लिखा हुआ अकाल है, समय के परे है, अमूर्त है, उनका चित्र नहीं बना सकते हैं। वो आदि और अंत से रहित है। वो आदि में भी है, अंत में वही है। ये सब है। और सोचेंगे तो उनके बारे में सोच नहीं पाएंगे, उनको देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे। आप सोचे कि हम मौन रह करके भगवान को पाले, मौन रहिए, मौन रहने से नहीं मिलेंगे। और क्या लिखा है? आप भूख मिटा करके सोचिए भगवान को पाले, खूब बढ़िया खाना पीना खाइए, उससे भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कुछ भी करिए नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कहा? नाल में। नाल क्या है? नाभि के अंदर, ये मेडुला। कहाँ मिलेंगे? देखिए, हुकुम रजाई चलड़ा नानक लिखिया नाले। परमात्मा के हुक्म को पकड़िए। अभी तक मन के हुक्म को पकड़ते कि ये स्वादिष्ट खाना, ये बढ़िया गाना, ये बढ़िया जगह, ये क्या दृश्य है, क्या पर्यटन की, क्या बढ़िया है। ये तो मन और बुद्धि के द्वारा काम करे। नहीं, ना ले। यहाँ पर जो ज्ञान है उसके माध्यम से आप पाइए। देखिए, हुक्म, यहाँ के हुक्म से काम करिए। वहां के हुक्म से काम करेंगे तो क्या होगा मालूम है? जब हुक्म से काम करेंगे तो अंदर संभव, बाहर हुक्म नहीं। आप सोचते बाहर कोई आके हुक्म देगा भगवान की तरह, ये करो वो करो, नहीं। अंदर से हुक्म आएगा। जब आप क्रिया ध्यान करके अंदर में जाते हैं तो वॉइस ऑफ गॉड, प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है, वही उनका हुक्म है। ये नानक देव जी कहते हैं। तो नानक देव जी जो कहते हैं वही कबीर साहब ने कहा, वही संत रविदास ने कहा था, वही सभी ने कहा। और उस चीज को बहुत बढ़िया सा, कौन सबसे बढ़िया प्रस्तुत किया लिख करके, ज्ञानता सामिक तेजस्वी होली साइंस के रूप में। तो अब देखिए, ये सूडो गुरुडम क्या है? आंखों से देखा सच है। हाँ भाई, सच है, लेकिन झूठ है, सच नहीं है। अरे किसी ने कहा ना, किसी ने पढ़ाया, आंखों से देखो आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, महुआ का पेड़ है। हाँ भाई, सच है नहीं। जो ये शिक्षा देता है कि ये सच है, जो आंखों से देखते हैं, जो कान से सुनते हैं, जो गंध और स्वाद की अनुभूति से करते हैं, वो कौन सा धाम है? सूडो गुरुडम, तो गुरु धाम है जो मायावी है। और सच्चा गुरु धाम कौन है? जैसे परमहंस योगानंद जब शिक्षा दे रहे थे, स्वामी तीर्थगिरी जहां दे रहे थे, लाहड़ी महाशय जहां दे रहे थे, सच्चा गुरुडम है वो। ऐसी शिक्षा जहां शुद्ध रूप में मिल रही हो, वही है गुरुधाम। वहां जाने पर राग देश मिट जाता है, सबसे प्रेम हो जाता है।
अगर सबसे प्रेम नहीं हो रहा है तो गुरु धाम नहीं है वो, फिर है क्या वो? सूडो गुरुडम, वो मायावी गुरुधाम है, माया का जगत है। इस तरीके से याद रखिए कि नानक देव जी ने जो कहा वही होली साइंस में है। कि होली साइंस क्या गजब का लिखा है, उसको छूते ही एकदम ज्वार से सिहरन होने लगती है। क्या सिस्टमेटिक लिखा है। द स्वामी त्रिशूल हाईएस्ट साइंटिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, जो अतीत वर्तमान भविष्य तीनों लिख दिए हैं उसमें। काल और अकाल दोनों का वर्णन है, दृश्य और अदृश्य दोनों का वर्णन है। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं। कितने बड़े ज्ञानावतार गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई सदग्रंथ होली साइंस हम लोगों के साथ है, और उसी का अभ्यास यहाँ पर करते हैं। इस भूमि पर स्वामी त्रिशूल को महाअवतार बाबा ने आलिंगन करके कहा कि स्वामी, तो धन्य है ये जगह जहाँ आप बैठ करके आप क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं, खूब लगन के साथ करिए, कुछ खुश हो जाइए। अरे उतने खुश से संतुष्ट ना होइए। अरे बड़ा अच्छा हुआ, क्या हुआ? जुकाम चला गया। जुकाम तो होता ही नहीं है। अरे बड़ा अच्छा ध्यान किया, बुखार चला गया। अरे बुखार भी नहीं होता है। इतना अच्छा ध्यान किया, डायरिया ठीक हो गई। अरे डायरिया भी नहीं होती है। माया के इस बड़े से विस्तार की नगरी में हमारा वर्णन क्या किया जाता है? हम कमजोर है, थके हैं, बीमार है, बुखार है, जुकाम है, ये है, वो है। और जब गुरुडम में जाते हैं, गुरुधाम में जाते हैं, वहां कहा जाता है बीमारी होती ही नहीं है। न तनाव है, चिंता है, न थकावट है, न दर्द है, कुछ भी नहीं है। तो है क्या ये? हम जब बढ़ते हैं तो बसंत ऋतु आती है और पतझड़ आता है। जब पतझड़ और बसंत आता है, पतझड़ आया फिर बसंत आया, फिर पतझड़ फिर बसंत आया, इससे क्या होता है? जैसे वृक्ष बढ़ता है ऐसे वृद्ध को प्राप्त हो रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं लगातार, लगातार हम बढ़ते हैं। जब पेड़ लगातार बढ़ते हैं तो क्या होता है? हर साल पतझड़ होता है, फिर बसंत आता है, फूल खिलते हैं, हरी पत्तियां आती हैं। ऐसे पतझड़ होता है, फेफड़े में हुआ, हार्ट में हुआ, किडनी में हुआ, आंतों में हुआ, हड्डी में हुआ, मसल से हुआ, चमड़े में हुआ, आंखों में हुआ, कान में हुआ। तो इसका स्वागत करिए। उस पतझड़ में होता क्या है? सिर से पैर की उंगली तक इसमें परिवर्तन होता है। उसी को कृष्ण भगवान ने छंद कहा, छंदास यस्य परिणाम। जो पतझड़ हुआ, जो हल्कापन, भारीपन, कड़ापन, ढीलापन, गर्मी और सर्दी की अनुभूति होती है, वो सब पतझड़ की पत्तियां हैं। वो क्या होती? पत्तियां वही खाद होती है पेड़ का। जो कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन जो होता है, जो छींक आई, जुकाम हुआ, डायरिया हुआ, कुछ भी हुआ, इससे अंदर में एक पौष्टिक तत्व निर्मित हो रहा है। उससे घबराइए मत, क्रिया योग ध्यान करते जाइए। तब पता चलेगा पतझड़ गया, अब बसंत आ गया। बसंत आ गया कैसे लगे? अरे बुखार गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बुखार वाला भी अच्छा था, गया ये भी अच्छा है, दोनों बराबर अच्छे हैं। जब दोनों को बराबर अच्छा कहेंगे तो आपका विकास तीव्र गति से होगा और एक ही जन्म में हम पहुंच जाएंगे लहरी महाशय तक। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपकी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड की दवा लेते हैं, तो हम नहीं कहते कि इसको ना मानिए, मानते रहिए। अपने डॉक्टर को दिखा के दवा लेते रहिए, क्रिया का अभ्यास करते जाइए। करते करते एक दिन आएगा, डॉक्टर ही कहेंगे कि अब दवा की आवश्यकता नहीं है आपको। अपने आप एक अनावश्यक सम्मोहन में आके दवा खाना बंद मत करिएगा। एक हम भ्रमित हो जाते हैं, तो क्रिया योग कर रहे, दवा की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्रिया योग करें, दवा की आवश्यकता नहीं, तो हो जाइए स्वामी शांतानंद की तरह। मात्र कुछ महीने में 20 दवाएं खाते थे, सब गांठ बना करके रख दिए। अभी आई थी वहां कनाडा से वेंडी जी, सारी दवाओं को गंगा में फेंक गई।
इंसुलिन था, ब्लड प्रेशर का था, सारी दवाएं फेंक करके गया, उनको जरूरत नहीं पड़ी, एकदम ठीक हो गई हो। उन्होंने अभ्यास किया, आपके रिपोर्ट भी जब ठीक आ जाए, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ठीक आ गई, तब मानिए ठीक हुआ, इसके पहले नहीं। हम आपसे रिक्वेस्ट क्या करते हैं, बस क्रिया योग ध्यान करते जाइए, इतनी शांति मिली, अरे खुश मत हुई, और शांति और शांति और शांति चाहिए। क्रिया योग ध्यान के बड़ा मजा है, अरे चुप रहिए, और मजा और मजा। जब तक पूरा ब्रह्मांड का निर्माण न कर ले, उससे सुरक्षा के नियम को न जान ले, आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन न कर ले, तब तक उस मजे में आप भ्रमित मत होइए। जो क्रिया ध्यान में शांति मिली, मजा आया, उसमें भ्रमित मत होइए और बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आई वांट टू मेक इट क्लियर। Maya is appearing in so many kinds. When try to read medical science, so many signs, symptoms, illness, sicknesses are explained. Infinite number of illness, sickness. Try to read homeopathy book. You will find, and when you are doing this, oh, you are sick. When psychology, moving your head, oh, this must be some sickness. Everywhere there is explanation, interpretation of infinite dimension of illness and sickness. That is all Maya. In the principle of spirituality, there is no illness, sickness, there is no weakness, there is no tension. What you feel, ever-growing process is happening. How to understand it? See the tree. Tree is under fall. Now leaf is not there. Trees are naked, without a leaf. Then spring comes, oh, nice green leaves and flowers, fruits, everything. Therefore, when you are growing the spiritual consciousness, in the growing you have to grow up to the extent, up to the height, to experience complete knowledge of Lahiri Mahasaya. Therefore, you are just having the journey, fall and spring, fall and spring. When the process of fall and spring, you feel a lot of changes within head to toe. Those changes are the presence of the greatest thing what you need. Try to appreciate, love all varieties of changes with this principle. These changes is the ever-growing process. We are growing sincerely, we are growing and growing. But I also warn you, if you are having some problem, endocrine problem, taking pill of thyroid, or have diabetes, or blood pressure medicine, do not stop it. Do not say there is no sickness. Sickness exists for you. You have to practice reach to the height of Swami Shantananda. When Swami Shantananda realized, I don't need medicine. In the same way, when Dee Tomlin came from Canada, she was taking the insulin, blood pressure medicine. And regularly she is checking. Now no diabetes, no blood pressure. She took the all medicine and she just dipped in the holy Ganga. Now she doesn't need that. Moment to reach to that height, like Swami Shantananda, how he did, big amount of medicine, he just bowed down, I don't need you. If you are having some pill of diabetes, blood pressure or thyroid, do not try to dump it in the garbage. Practice Kriya Yoga sincerely. Seek a kingdom of God within more and more. Let your physician will explain that you need medicine or not. When physician will say, now you do not need medicine, you see your pathological report is correct, then you should know now you do not need it. Don't become emotional when you are practicing this principle. When I say there is no illness, sickness, that is the correct. I said there is no birth and death, that is the correct. Lahiri Mahasaya demonstrated there is no birth, no death. Samiktesya Guru, Paramahansa Yogananda, Jesus Christ, they all demonstrated there is no birth, there is no death. But you feel that there is a birth, there is death, accept it, but practice Kriya Yoga sincerely more and more until you reach to the height of Lahiri Mahasaya to experience there is no birth, there is no death. What is the conclusion? Practice more and more, more and more. Whatever changes you feel, believe.
those changes are ever-growing process. You are growing. You are expanding. Your consciousness is expanding more and more. From physical to astral to causal, in this alive form, with this physical body, you are going to experience causal universe. That is not the limit, that is not the end. When you go beyond causal universe, then you will be creator of causal universe, astral and physical. What you are listening is not miracle, this is a science. Lahiri Master demonstrated this science. First science was demonstrated by Mahatar Babaji. He created Golden Palace. When work is done, he made it disappear. And the same way, Lahiri Master created many things. Swami Tishyagiri created many things. Paramahansa Yogananda, just he merged with all human consciousness. He never demonstrated in that way of creation. Because he is having greatest love for all, he has to come again and again. For by law, he cannot demonstrate that miraculous power as demonstrated by Lahiri Mahashaya, Swami Tishyagiri. Because they have not to come here again and again. It is the Paramahansa Yogananda and Jesus Christ, Krishna, they all decided to come again and again. Therefore I see clearly Paramahansa Yogananda is incarnation of Jesus and Krishna. I say it. If we must remember that Paramahansa Yogananda said, "O India, I will be there." In the air of India, Paramahansa Yogananda is filled. In the sky of India, he is filled. What is the meaning of India? When you learn how to go inside and dial these knowledge centers, then you are Indian. You may be in the flight, you may be in the Japan, you may be anywhere, you may be in America, Canada, but you are Indian. You are Indian means you are following Christ consciousness. This is the brief message for today.